Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 44 as I'll be continuing with exercise 2 of Unit 11, present continuous tense. So students, please take out your English grammar books, turn to page number 44. Exercise 2, Unit 11, Present Continuous Tense. Students, in my last video, I had started with exercise 2 and we had done the exercise 2 till the 10th blank. And now today I'll be continuing with the 11th one. But students, before I start with the 11th, let's revise exercise 2 till 1 to 10. So exercise 2, fill in the blanks with the correct form of verbs in the present continuous tense. And beta, before I start this, let's revise little bit of present continuous tense. बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि वर्ब में आईएनजी लगता है और वर्ब में आईएनजी के पहले इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब में से एक लगेगा डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे. और सब्जेक्ट अगर आई है तो हम एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स. नाउ the first one of exercise 2, that is fill in the blanks with the correct form of verbs in the present continuous tense. The first one, the teacher dash the notebooks, and the verb given in the bracket is check. So we need to look at the subject. हमारा subject इसमें क्या है? The teacher, singular है तो हम यहाँ पे check में क्या लगाएंगे? ing और उससे पहले लगा देंगे is. So हमारे ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? is checking. The teacher is checking the notebooks. Fine. So write is checking in the first blank. Then the second one. We dash our work and the verb given in the bracket is complete. The verb given in the bracket is complete. So complete जो verb है उसकी spelling में last में e है. तो जब जो भी वर्ब्स है जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है हमें क्या करना है? आईएनजी लगाने के लिए वी नीड टू ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी. सो कंप्लीट का जब कंप्लीटिंग करेंगे तो आप याद रखोगे लास्ट का ई नहीं आएगा और उसमें क्या आएगा? आईएनजी. देन वी नीड टू लुक एट द सब्जेक्ट विच इज वी. तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर. तो अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी आर कंप्लीटिंग आर वर्क. Then the third one, I dash a phone call और वर्ब जो ब्रैकेट में दिया है make है. make के भी स्पेलिंग में लास्ट में ई है उसका भी ing फॉर्म लगाने के लिए what do we need to do? We need to drop the e and add ing. make making. I है तो I के साथ तो is भी नहीं आएगा, r भी नहीं आएगा. क्या आएगा बेटा? m. So I am making a phone call. Right? I am making in the third blank. Then the fourth one. Children dash saplings in the park and the verb given in the bracket is plant. तो plant में ing लगाएंगे तो क्या होगा? Planting. और subject children है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? are. So the sentence will be children are planting saplings in the park. Right, are planting in the fourth blank. Then the fifth one. The beggar dash for food and the verb given in the bracket is ask. ask में हम ing लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? asking. The beggar singular है तो उसके लिए हम कौन सा helping verb यूज करेंगे? is. तो हमारा sentence क्या हो जाएगा? The beggar is asking for food. Then the sixth one. It dash very dark. अब GET get है तो get में ing लगाने के लिए हम क्या करेंगे? T को डबल करेंगे और ing ऐड करेंगे. GE double T ing.
और इट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज. सो इट इज गेटिंग dark, right? Is getting in the sixth blank. Then the seventh one. They dash at the hotel. ब्रैकेट में वर्ब क्या है? स्टे है, तो स्टे में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टे. और सब्जेक्ट क्या है? दे. तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर. तो क्या हो जाएगा? दे आर स्टेइंग एट अ होटल. सो राइट आर स्टेइंग इन द सेवेंथ blank. Then the eighth one. He dash a bike. और ब्रैकेट में वर्ब दिया है राइट. अब बेटा राइट की स्पेलिंग में भी लास्ट में ई आता है, तो आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए हमें व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू ड्रॉप डाउन द ई एंड ऐड आईएनजी. और ही है तो इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा? ही इज राइडिंग अ बाइक. देन द नाइन्थ वन. राज डैश हिज न्यू जीन्स. और ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है दैट इज वेयर. और वेयर में सिंपली हमको आईएनजी ऐड करना है, और राज सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? इज. तो राज इज वेयरिंग हिज न्यू जीन्स. सो राइट हिज इज वेयरिंग इन द blank, 8th blank, sorry 9th blank. Then the 10th one. You dash a reality show and the verb given in the bracket is watch. तो क्या हो जाएगा? You are watching a reality show. So write are watching in the 10th blank. Now students, I'm going to start with the 11th one. 11th one is Riya and Shaurya dash a song and the verb given in the bracket is sing. Now what do we need to do? सबसे पहले तो हमें जो वर्ब है जब भी कंटिन्यूस रहेगा तो ये याद रखना है कि वर्ब में हमको क्या लगाना है बेटा? हमको आईएनजी लगाना है. तो सिंग का आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग, है ना. अब इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है. तब सब्जेक्ट देखेंगे रिया एंड शौर्या. वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स. हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर, है ना. आर सिंगिंग. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर सिंगिंग. रिया एंड शौर्या आर सिंगिंग अ सॉन्ग. रिया एंड शौर्या आर सिंगिंग अ सॉन्ग. सिंग में हमने आईएनजी लगाया तो सिंगिंग हो गया. आर हमने क्यों लिया? बिकॉज हियर the subject is plural. We are talking about two persons, Riya and Shaurya. Whereas beta, I'm writing an example. अगर सिर्फ रिया होता, रिया dash a song. अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना. हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिया इज singing a song. Riya is singing a song. ये आपको याद रखना है बेटा. रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग. यहाँ पे रिया सिंगुलर है तो हमने इस प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. वेयरएज हमारे सेंटेंस में तो रिया एंड शौर्य वी टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, विच मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे? आर सिंगिंग. Fine. So please write are singing in the 11th blank. Please write students, Riya and Shaurya are singing a song. Are क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा देते, इसलिए हमने सिंग में क्या लगा दिया? आईएनजी सिंगिंग. Fine. I am sure all of you must have done. Now I'm going to erase this and write the 12th sentence. The 12th
One is Rahul and I dash old clothes to poor kids, and the verb given in the bracket is donate. बेटा डोनेट का मीनिंग जानते हैं ना, दान करना, डोनेट करना, दान करना। हमारे भी जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, दैट यू शुड ऑलवेज डोनेट टू द पुअर एंड द नीडी चिल्ड्रन। फाइन। अब सबसे पहले हमें डोनेट का आईएनजी फॉर्म बनाना है, तो हम डोनेट की स्पेलिंग देखेंगे। इस डोनेट जो वर्ब है उसके लास्ट में क्या है, ई है। तो हमने क्या सीखा है कि जो भी वर्ब के लास्ट में ई हो उसका आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी। हमको ई को ड्रॉप करके क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो ये तो हमने डोनेट का आईएनजी फॉर्म बना लिया। नाउ अब हमें देखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कौन सा यूज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट देखेंगे, है ना। राहुल एंड आई, कितने लोगों के बात में बात हो रही, 2 people, राहुल एंड आई। दैट मीन्स कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा, आर। सो राहुल एंड आई आर और donating old clothes to poor kids. Fine. So Rahul and I are donating old clothes to poor kids. हमने आर क्यों लिया, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राहुल एंड आई। तो हमने आर लिया। और जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके वर्ब में हम हमेशा आईएनजी ऐड करते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जिस वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, जिस भी वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉप डाउन दैट ई एंड ऐड आईएनजी। तो हमने डोनेट की स्पेलिंग में से ई को ड्रॉप किया और किसको ऐड किया, आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, राहुल एंड आई आर डोनेटिंग ओल्ड क्लोथ्स। नाउ स्टूडेंट्स अभी एक एग्जांपल देखो, तो और सपोज अगर सेंटेंस होता राहुल डैश ओल्ड क्लोथ्स टू पुअर kids, and the next one is I dash. Suppose ये अलग अलग सेंटेंस होते हैं, old clothes to poor kids। बेटा ये आपको लिखना नहीं, आपको समझना है। मैंने समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल्स लिए। अगर सपोज सेंटेंस होता राहुल डैश ओल्ड क्लोथ्स टू पुअर किड्स और आपको डोनेट भरना होता, तब आप क्या करते, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राहुल, एक पर्सन है। यहाँ पे 12 सेंटेंस में तो हमारा सब्जेक्ट राहुल एंड आई 2 पर्सन्स है। तो अगर सिर्फ राहुल होता तो व्हाट वुड हैव यू रिटन, राहुल इज डोनेटिंग ओल्ड क्लोथ्स टू पुअर किड्स। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप वर्ब जो है इन फॉर्म ऑफ वर्ब उसके पहले क्या यूज करेंगे, इज। Whereas अगर सेंटेंस होता आई डैश ओल्ड क्लोथ्स टू पुअर किड्स, अगर सब्जेक्ट आई होता तब आप क्या लिखते, तब आप लिखते आई एम डोनेटिंग ओल्ड क्लोथ्स टू पुअर किड्स। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, डोनेटिंग तो तीनों में सेम है, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है। किस बेसिस पे चेंज हो रहा है, ऑन दी सब्जेक्ट। 12th सेंटेंस में राहुल एंड आई था, प्लूरल था, तो हमने आ लिखा।
वेरएज मैंने जो एग्जाम्पल लिए, अगर सिर्फ राहुल होता तो आप इज डोनेटिंग लिखते, अगर आपका सब्जेक्ट आई होता तो आप एम डोनेटिंग लिखते. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे. और कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब दिया है ब्रैकेट में उसमें क्या लगेगा, आईएनजी. बट आईएनजी लगाने के लिए भी आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग में, स्पेलिंग के हिसाब से आईएनजी लगेगा. कहीं पे डबल कॉन्सोनेंट होता है लास्ट वाला, कहीं पे ई ड्रॉप होके आईएनजी लगता है. सो दिस थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड. So all of you must have written, Rahul and I are donating old clothes to poor kids. All of you have written. So now I'm going to erase this and write the 13th one. Mother dash dinner for us, and the verb given in the bracket is prepare. जो वर्ब है वो क्या है बेटा, प्रिपेयर. ना सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाना है. सो द स्पेलिंग ऑफ प्रिपेयर हैज गॉट ई एट द एंड. प्रिपेयर की स्पेलिंग में ई है, तो हमें इसका आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉप डाउन द ई एंड ऐड आईएनजी. तो हमने प्रिपेयरिंग तो बना लिया आईएनजी फॉर्म, है ना. नाउ वर्ब का, नाउ अब हमें देखना है कि हमें इसमें इज, एम, आर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसको देखेंगे बेटा, सब्जेक्ट को देखेंगे. हु इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अस, सो मदर. मदर है ना, कौन खाना बना रहा है, जो भी एक्शन करता है, द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन इन द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट. तो मदर सब्जेक्ट है, मदर तो सिंगुलर है, तो हम प्रिपेयरिंग के पहले क्या यूज करेंगे, इज. मदर इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अस. हमने इस क्यों लिया, क्योंकि हमारी मदर जो है वो सिंगुलर है ना. सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम इज लेंगे. प्लूरल होता, सपोज अगर सेंटेंस होता है माय मदर एंड आंट डैश डिनर फॉर अस, तो अब हम क्या लिखते हैं, मदर एंड आंट होता है तो तब हम लिखते हैं आर प्रिपेयरिंग, है ना. सो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है. मैं आपको एग्जाम्पल्स भी लिख देती हूँ सो दैट यू रिमेम्बर. सपोज सेंटेंस होता, मदर एंड आंट डैश dinner for us. Whereas the next is I dash dinner. अगर ये सेंटेंस होता, मदर एंड आंट, अगर मदर एंड आंट आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल होता, तब आप यहाँ पे लिखते हैं आर प्रिपेयर. आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले. वेयरएज यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, मदर एंड आंट है, तो आपने इसकी जगह क्या यूज करना है, आर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अस. एंड सपोज अगर सब्जेक्ट में आई है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा आई के साथ हमेशा एम आता है. आई एम प्रिपेयरिंग डिनर. फाइन.
सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले आर, और अगर सब्जेक्ट आई है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले एम। ये आपको बेटा अच्छे से याद रखना है। So all of you must have written as preparing. Fine. Now I'm going to erase the 13th one, that is mother is preparing dinner for us, and write the 14th one. The फिशरमैन, फिशरमैन जानते हैं ना, जो फिश पकड़ता है उसको फिशरमैन बोलते हैं। द फिशरमैन डैश फिश and the verb given in the bracket is catch. So अब बेटा कैच का आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस कैच में हमको आईएनजी ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा? कैचिंग। ये हमारा आईएनजी फॉर्म बन गया कैचिंग का। ना अब हमें पता करना है कि हमें इज एम आर में से क्या लगाना है। एम तो हम लगा नहीं सकते बिकॉज एम हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। अब नाउ द सब्जेक्ट इज फिशरमैन। फिशरमैन, लुक एट द स्पेलिंग, यहां पे ध्यान से देखिए MAN लिखा है, तो वॉचमैन, पुलिसमैन, फिशरमैन, जो भी स्पेलिंग के लास्ट में MAN है मीन्स वो वन पर्सन है। फाइन, सो दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, है ना। सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंगुलर है तो फिशरमैन इज कैचिंग फिश। हमने इस क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। वेयर एज स्टूडेंट्स, इफ आई राइट द एग्जाम्पल, नाउ लुक एट द डिफरेंस, जस्ट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। सपोज अगर द फिशरमैन होता, MAN की जगह MEN होता, तब क्या होता? ये तो सबको पता है MAN मैन सिंगुलर होता है और MEN प्लूरल होता है। तो बेटा वॉचमैन, पुलिसमैन, फिशरमैन, है ना, इन सब में अगर MAN है लास्ट में स्पेलिंग में, दैट मीन्स इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और MEN है इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अगर MAN की जगह MEN होता तब आप यहाँ पे क्या लिखते? द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड, द बेसिक डिफरेंस, है ना। आपने पढ़ा, आपने इस बार कुछ भी पढ़ दिया, नो, यू नीड टू लुक एट द स्पेलिंग केयरफुली। If in the spelling at the end MAN is there, MAN here, that means that is singular. And if in the spelling last में MEN है, that means the subject is plural. और उसके हिसाब से आपका helping verb है बेटा, वो change होगा। Fine? So, the fisherman is catching fish and the fishermen are catching fish. And ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब, बस ये ए और ई का डिफरेंस, दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि बस एक ए और ई स्पेलिंग में चेंज हुआ है। अगर MAN मैन है लास्ट में, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वेयर एज अगर MEN है स्पेलिंग में, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज प्लूरल। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आर कैचिंग। Fine. So, the fisherman is catching fish. I'm sure all of you must have written
is catching in the 14th line. Now I'm going to erase this and write the last 15th one of exercise 2. And the 15th one is cats dash the mice. And the verb given in the bracket is chase. Now, सबसे पहले क्या करना है? इंक फॉर्म बनाना है. So, chase की स्पेलिंग ध्यान से देखो. It has got E at the end. Chase की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है? E है. Fine. ये क्या इंडिकेट करता है? कि verbs which have got E at the end, उनका अगर हमें इन फॉर्म बनाना है तो what we need to? We need to drop the E and add ing. तो chase में हमने क्या किया? E को ड्रॉप किया और क्या ऐड किया? ing. We need to drop the E and add ing to form the in form of the verb. तो हमारा in form तो chasing बन गया. Now the next thing what we'll do, we'll look at the subject to know कि हमें कौन सा helping verb लगाना है. Now cats dash the mice. is आएगा, r आएगा, m आएगा. Cats s लगा हुआ है, which means plural. तब क्या हो जाएगा? Cats are chasing the mice. Fine. So students, what do you need to remember? कि अगर हमारे वर्ब के लास्ट में ई लगा हुआ है तो हमें उसका इन फॉर्म बनाने के लिए what do we need to do? We need to drop the e and add ing. जो भी वर्ब में टेक हो, मेक हो, बेक हो, उसका ing फॉर्म लगाने के लिए आपको क्या करना है? Keep in mind, we need to drop the e and add ing. Now, suppose बेटा अगर I'll write the example. The cat dash. अगर आपका सेंटेंस ये होता, this is an example for your understanding, please do not write this. The cat, अगर cat की जगह cats की जगह cat होता, the cat dash the mice, तब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, है ना? आपको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भरना होता चेजी को, तब cats था तो हमने आर लिया, और अगर सब्जेक्ट कैट होगा तो हम क्या लेंगे बेटा? इज. द कैट इज चेजिंग द माउस. गॉट इट? सो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आपको इज एम और क्या बनना. सपोज इफ द सेंटेंस वाज आई dash the mice. अगर कैट की जगह आई होता तब आप क्या लिखते? चेजिंग के पहले आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बेटा? एम. आई एम चेजिंग द माउस. सो बेटा मेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज देखना है. दैट इज, आर और एम. आर हम किसके साथ लेंगे? इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल. आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल आई होगा तो हम एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो मेन बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं. इनमें से एक सब्जेक्ट के हिसाब से हम चूज करते हैं, एंड वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है. एंड दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि जिस वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में ई है, वी नीड टू ड्रॉप डाउन दैट ई एंड एड आईएनजी. सो आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 इज clear to everybody. And all of you have completed this exercise in your English grammar book. If you haven't, please complete this in your English grammar book. And
डोंट रिवाइज एक्सरसाइज 1 ऑल्सो, है ना, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग सो दैट आपको याद रहेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें इस कहाँ पे यूज करना है, एम कहाँ पे यूज करना है और आर कहाँ पे। बट कंटिन्यूअस वर्ड जहां भी क्लिक करे आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू। हैव अ गुड डे अहेड।